Today is the 4th day of 5 days 5 Python challenge and I'm pretty sure कि आप सब लोग Netflix को binge watch करते होंगे. But have you ever thought of कि Netflix को कैसे पता होता है कि आपको कौन सी मूवी देखनी है? Every time you watch a movie, आपको वो recommendation दिखाता है. How is that happening? So आज के इस 4th day of 5 days 5 Python project में we'll try to understand कि कैसे machine learning का इस्तेमाल करके कैसे मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP के लाइब्रेरीज को यूज करके आपको बताऊंगा कि नेटफ्लिक्स डेटा सेट को यूज करते हुए अगर आपने एक मूवी चूज करी है तो नेटफ्लिक्स आपको कैसे मूवी रिकमेंड करता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट गोइंग इन डूइंग दिस वेरी प्रैक्टिकल एंड इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. As soon as I open this movie, I get to see so many options as a recommendation. Hello everyone, I'm again on my desk and we are all set to get started with building our own recommendation system. As we already talked about, इस project में हम लोग किस तरीके से Netflix movie को recommend करता है. We'll try to see that how do we do it. और इस पूरे प्रोजेक्ट को सॉल्व करने में one of the concept that we'll be using will be of NLP, which stands for Natural Language Processing. अब इस पूरे प्रोजेक्ट में I'm going to make use of multiple libraries of NLP to find the similarities between the movies, and once you suggest me a movie through my code, through my model, I should be able to suggest you the movies that you will be interested in. So what are we waiting for? Let's get quickly started. Understand all the terms, all the concepts, वो सारी चीजें जो एक recommendation system बनाने के लिए चाहिए, मैं वो सारी चीजें एक एक करके आपको समझाऊंगा and will deep dive into this project. So let's get started. As you can see on the screen, मैंने कुछ Netflix के डेटा को लोड कर लिया है. I found over the internet and I got some data set where Netflix की movies, shows, videos वगैरह वो सारा कुछ CSV फाइल फॉर्मेट में है. और क्या क्या है वो? I have a show ID, I have title, I have description, director, genre of the movie, cast, production country, release date, ratings, all these information there. It's a huge file. Now इस फाइल में जितने सारे मूवीज हैं उसको मैं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, उसको मैं ग्रुप करने की कोशिश करूंगा, उसको मैं क्लासिफाई करने की कोशिश करूंगा. And once I have done that, for each of the movie title based on their genre, I would like to find what are the other similar movies which I can use for recommending anyone. Okay, so let's get started. So इसमें what all things that I'll be using, as I was previously mentioning, इसमें natural language NLP का काफी ज़्यादा use होने वाला है. तो NLP की one of the libraries which is very famous in the market, which we're going to make use of, that will be NLTK. So for that what I do, let me go and first of all go and install NLTK, which stands for Natural Language Toolkit. It will have the different methods and techniques and the models which will help us to classify the text, understand the text, understand the similarities, and will help me do the recommendation. We'll see that how it makes use of it. So let me go and install this. Perfect. दूसरी लाइब्रेरी जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वो है pip install, and I go and say that scikit-learn. Scikit एक ऐसी machine learning library है which help me in doing the classification. Let me help you with the help of an example. मान लीजिए you want to categorize all the food item that is there in a restaurant in either curry or in the tandoori. So for this kind of situation, what you can do is that you can have a data set, and using the scikit-learn, you can train your model, and then when it is trained, any food item that comes to it, if you give it to the model trained by the scikit-learn, it will help you identify कि भैया ये curries की कैटेगरी में फॉल करेगा या फिर तंदूरी के कैटेगरी में फॉल करेगा. तो हम लोग ये scikit-learn लाइब्रेरी यहाँ पे यूज करेंगे to again do the categorization, text analysis and all those things in our current project. So हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं. ठीक है, ये आ चुका है मेरे पास.
नाउ जब ये सारी चीजें आ गई हैं, मेरे पास डेटा CSV फाइल में है, तो मुझे उसको रीड करना होगा, तो उसके लिए मुझे numpy और pandas की जरूरत पड़ेगी. तो let me first of all go and import numpy and pandas. So I go and say that import numpy as np, and I go and say that import pandas as pd. और जो scikit-learn हमने वहां पे उठाया है, उससे हम लोग क्या करेंगे, from sklearn, I go and say that feature extraction import text, और फिर हम लोग sklearn and I go and say that metrics dot pairwise import cosine similarity. अभी ये जो आपको कोसाइन सिमिलैरिटी दिख रही है, इसको आप इग्नोर करिए, अपन बाद में बातें करेंगे. अगर आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं तो टू आइडेंटिफाई टू मूवीज इफ दे आर सिमिलर और नॉट, ताकि मैं उसको रिकमेंड कर पाऊं, वी आर गोना मेक यूज ऑफ दिस कोसाइन सिमिलरिटी लेटर ऑन. तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो तो पहला टास्क अपने को जो करना होगा, वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड रीड दिस एंटायर डेटा सेट, है ना. तो फॉर दैट व्हाट आई गो एंड डू, आई गो एंड से दैट नेटफ्लिक्स underscore data frame equals to pandas dot read CSV, और उसके अंदर हमको CSV फाइल का देना पड़ेगा. तो CSV फाइल, व्हाट इज माय फाइल, netflix data dot CSV. so I can say that netflix data dot CSV, and once I have done this, let me go and print this, print netflix data def head. If you go and run this, it's saying PD is not defined. Let me go and run this. अब इसको रन करते हैं. As you can see here, it gets displayed so ID, title, description, director, so many other, genre, everything. और एक बार क्विकली इसको अगर देखने की कोशिश करें, then you will find that inside the title column, the name sometimes starts with some special character, right? Hash. So I think a lot of thing has to be corrected in this, because many of the data might be missing. For example, you can see that NaN data, few of might not be available, the formatting is not correct. So the data cleaning has to be done, right? So data cleaning has to be done, that's one. But before we do it, let's try to dissect this table. ये जो पूरा का पूरा टेबल मेरा बना है netflix underscore data frame, इसके सारे कॉलम्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. And how do we do it? We have already seen that. उसके लिए अपने को करना पड़ेगा क्या, netflix df डॉट इन्फो. जैसे आप इसको रन करेंगे, पूरे कॉलम के बारे में पूरा कथा चिट्ठा आपको खोल के दिख जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द कॉलम्स, शो आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डायरेक्टर, जॉनर, कास्ट, ऑल ऑफ दिस. कितने एंट्रीज है, 5967. नॉट नल है, नॉट नल है. डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, फ्लोट, सारी चीजें आपके पास आ गई है. ऑसम. अब मैं देखना चाहता हूं कि भैया इसमें क्या कोई नॉट कोई नल वैल्यूज भी है क्या. इफ इट इज दैट केस, व्हाट इज द केस. सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गो एंड से दैट प्रिंट, एंड इनसाइड दैट आई कैन से दैट नेटफ्लिक्स डॉट इज नल. इसको अगर मैं कॉल कर दूं और इसको रन करूं, सो फॉर ऑल द अदर कॉलम्स, राइट, इट सेज इफ इट इज नल. फॉर एग्जांपल डायरेक्टर यहाँ पे नल है, तो जहां पे भी नल होगा, एक स्पेसिफिक रो के लिए एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज वहां पे अगर वो नल है तो वो ट्रू आएगा, और अगर नल नहीं है, दैट इज सर्टेन वैल्यूज देयर, दैट विल गो एंड पुट एज फॉल्स. व्हाट डज इट मीन इज कि भैया कहीं कहीं पे नल तो है, देयर आर एंट्रीज वेयर नल इज प्रेजेंट, देयर आर एंट्रीज वेयर नल इज प्रेजेंट. और मैं अगर इसका काउंट करने की कोशिश करूं, हाउ मच इज दैट काउंट, सो आई कैन गो एंड से दैट प्रिंट, एंड आई गो एंड से दैट नेटफ्लिक्स डॉट इज नल, और उसके बाद सम कर देते हैं इसको. If I go and run this, टाइटल में नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नहीं है, डायरेक्टर में 2064 दफा नल आया है, राइट. सो दिस इज हाउ आई गेट द काउंट ऑफ द नल फॉर ईच ऑफ द कॉलम्स, राइट. नाउ इसमें कई सारे कॉलम्स है, सो आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, डायरेक्टर है, जॉनर है, कास्ट है, प्रोडक्शन है, रिलीज है. देयर आर सो मेनी कॉलम्स. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दोज कॉलम्स. I am only interested in a part of these columns. I am only interested in the
part of these columns. So how do I go and collect it? So first of all, let me go and reduce this data frame. So I go and say that required Netflix underscore data frame equals to Netflix data frame, और इसको reduce कर देते हैं. इसके अंदर में एक array of only those columns which I need. So for example, I need title, right? I will need something called as a description. ठीक है भैया, description. उसके बाद I'll need something called as content type. ठीक है, content type. And then I'll need something called as genre. I sometimes call it as genres, so genres, right? Whatever that you call it. And once I have done it, then I again do this required dot head. तो अब क्या है, मेरा जो data frame है वो reduced हो गया. It will only have the columns title, description, content type and genre, right? If I go and hit this play, I get only these, right? Title, description, content type and genres. Correct. Now I know with my previous thing that this table also contains certain rows which are null. So I want to drop that. So in the part of the cleaning process, I want to drop the rows which has null values. Just need to drop that. So I go and say that required nf, and I go and say that drop na. I did this, and after dropping this, let me go and find what is the count of this. So I go and say the required nfdf dot count. I go and run this. This will get me the count. So how much title is this much, description is this much, content type this much, genre. So since I have dropped all the null values, so all of them are giving me the right, correct count. Perfect. So far what we have done, we have got the data, we have read it, we have reduced the data frame to only those columns, which is title, description, content type, genre, which we actually needed. ठीक है, उसका count भी हमने निकाल लिया है. अब the next thing that we need to do is that we have to clean this data, right? We have to clean the data. अब क्या है, we have to actually do the NLP, natural language processing of this entire data set. अब पूरे डेटा में there's a lot of text. Few of the text are unnecessary or like too much frequent, which does not have too much of impact on the overall outcome. For example, जब भी कोई आप अंग्रेजी का सेंटेंस लिखते हो, उसमें आप यूजेस करते हो वर्ड्स लाइक is, are, at, and, you. इस सब का ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता नहीं है, राइट? सो आइडियली अगर मैं अपने पूरे टेक्स्ट को, जिसको मुझे प्रोसेस करना है, उसको ज़्यादा एफिशिएंटली करना चाहता हूँ, तो दीज काइंड ऑफ स्टॉप वर्ड्स विच इज़ वेरी फ्रीक्वेंट एंड हैज़ अ वेरी लेस इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल मीनिंग और द कॉन्टेक्स्ट, उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये करने के लिए क्या करना होगा? आई हैव टू गो एंड मेक यूज ऑफ NLTK लाइब्रेरी, राइट? सो फॉर दैट आई गो एंड मेक यूज ऑफ इंपोर्ट NLTK. ठीक है, दैट्स नंबर वन. इसको कर लेते हैं, इसको ले आते हैं. इसको लाने के बाद जो मैंने आपको बोला, देयर आर फ्यू वर्ड्स व्हिच आर हाई इन फ्रीक्वेंसी एंड लो इंपैक्ट, उसको हम कहते हैं स्टॉप वर्ड्स, राइट? तो जो NLTK है, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, वन ऑफ द लाइब्रेरीज ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसमें आई गो एंड डाउनलोड दोज काइंड ऑफ स्टॉप वर्ड, ताकि मैं अपने पूरे टेक्स्ट जिसको मैं एनालाइज करने वाला हूँ उस डेटा सेट में से, उसको हटा पाऊं. तो फॉर दैट व्हाट आई डू, आई गो एंड से दैट NTLAK.download एंड आई गो एंड पास हियर स्टॉप वर्ड्स. ठीक है भैया, मैंने इसको डाल दिया. उसके अलावा देयर मे बी द मेनी लॉन्ग वर्ड्स, राइट? लॉन्ग वर्ड्स जब आप यूज करते हो तो बस वो टेंस या सेंस चेंज करता है, बट द मीनिंग इज सेम एज द रूट वर्ड इटसेल्फ. तो जब आप एक बड़े से वर्ड को उसके रूट में कन्वर्ट कर देते हो सो दैट इट इज स्मॉलर इन साइज एंड इजी टू प्रोसेस, उसको हम लोग कहते हैं स्टेमिंग. उसको हम लोग कहते हैं स्टेमिंग, राइट? एंड फॉर स्टेमरिंग, and for that we make use of different libraries. So one of the stemmer libraries is the snowball stemmer library or snowball stemmer algorithm, right? So हम एक stemmer यहाँ पे use करेंगे. I'm going to call it the stemmer, and that will be NTLK.snowball stemmer English. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं NTLK के अंदर में I am going to make use of a stammering algorithm called as snowball stemmer,
for English language, right? It can be applied for the multiple language, so I'm making use of the English language so that all the words could be reduced down to a root word. और मैं क्या करता हूँ, from NTLK dot corpus I go and import stop words. I also go and import string, and I consider stop word equals to set stop words dot words English. तो हमने ये डाउनलोड करा, हमने स्टेमर का स्नोबॉल स्टेमर एल्गोरिथम हम लोग यूज कर रहे हैं, और फिर हम लोग स्टॉप वर्ड्स यहाँ से निकाल के लेके आते हैं सो दैट इट कुड बी अवॉइडेड फ्रॉम द एंटायर टेक्स्ट. लेट मी गो एंड रन दिस एंड इफ इट वर्क्स फाइन. दिस इज एन एरर. NTLK is not NL, no, it should be NLTK. Should be NLTK. It should be NLTK. And if I go and run this, right, package stopper is already up to date. Awesome. This is working all great. Now, once that is done, the next thing that I need to do is that I need to clean the data. I need to clean the data. Now, for cleaning the data, I know that the words will have anything which we may have the hyperlinks. So now we need to clean this data, है ना? Cleaning की ज़रूरत है. तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? I'll have to make use of some regular expressions. हम लोग पिछले भी प्रोजेक्ट में कुछ regular expression का यूज किया था हमने. I'm hoping that कि आप लोग सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे हो. In the case you have not watched the previous project, this is the time to take a pause और आप जाके सारे Python प्रोजेक्ट्स को देखिए जिसमें कि हमने कवर करें कई सारे इंपॉर्टेंट पाइथन कॉन्सेप्ट्स जो आपको जानने चाहिए एंड विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज अ डेटा साइंटिस्ट या फिर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं. तो नाउ आई गो एंड क्लीन द डेटा. फॉर दैट आई एक्चुअली नीड द रेगुलर एक्सप्रेशन, सो आई गो एंड से दैट इंपोर्ट RE. ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूँ एंड देन आई गो डिफाइन अ फंक्शन फॉर क्लीनिंग, राइट? क्लीन, आई गो एंड पास द टेक्स्ट. एक बार मैं पूरा ये लिख लेता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द एंटायर थिंग. सो आई गो एंड से दैट टेक्स्ट. सो आई हैव रिटन दिस टेक्स्ट. एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन. ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट लिया. सबसे पहले मैंने टेक्स्ट को क्या किया, टेक्स्ट को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, फिर हर जगह मैंने ना उसको जहाँ पे भी आपके ब्लैंक्स है उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, जहाँ पे भी आपके URLs है मैंने वो सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है. हमने सारे पंक्चुएशन को स्किप कर दिया हुआ है, राइट? और फिर हमने जितने भी स्टॉप वर्ड्स हैं उन सबको हटा दिया है और जितने भी वर्ड्स थे उन सबको स्टेम कर दिया है, राइट? सबको स्टेमर कर दिया ताकि ऑल द वर्ड्स आर रिड्यूस्ड टू देयर रूट फॉर्म, राइट? एंड फाइनली आई गॉट दिस टेक्स्ट. तो ये मैं क्लीन टेक्स्ट मैं इसे कर चुका हूँ. सो वंस आई हैव डन दिस, आई नीड टू गो एंड अप्लाई दिस क्लीनिंग ऑन सम डेटा सेट. सो फॉर दैट व्हाट आई गो एंड डू, आई गो एंड से दैट रिक्वायर डेटा NF डेटा फ्रेम. इसके अंदर मैं करता हूँ टाइटल, ठीक है, और इसमें मैं करता हूँ रिक्वायर्ड NF डेटा फ्रेम. फिर से मैं लेके आया हूँ टाइटल, T यहाँ पे कैपिटल होगा एंड देन पोस्ट दैट आई गो एंड डू दैट अप्लाई और मैं इसके अंदर में पास करता हूँ क्लीन वाला फंक्शन. ऑसम. तो जो टाइटल वाला कॉलम है मेरे डेटा फ्रेम में उसमें जितने भी टाइटल्स उसमें मैं ये क्लीनिंग एक्सरसाइज अप्लाई कर देता हूँ. इसमें मैं सारे क्लीनिंग एक्सरसाइज अप्लाई कर देता हूँ और इसके करने के बाद लेट मी गो एंड डू दिस required NF data frame dot head. इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है. So for that first of all I'll have to go and run this. इसको मैंने रन कर दिया एंड फिर उसके बाद इसको रन करते हैं. तो टाइटल वाला इस तरीके से दिख रहा है. If you can see it's looking very clean now, right? And then also ये स्टैमर हो चुका है तो बस उसके रूट फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं. Fair enough? अगर मैं सिर्फ टाइटल्स को ही देखना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ प्रिंट एंड मैं इसके अंदर में रिक्वायर्ड NF डेटा फ्रेम और इसके अंदर मैं कर देता हूँ टाइटल्स, सॉरी TITL डॉट सैम्पल एंड आई वन से 10 सैम्पल. अगर मैं देखना चाहता हूँ if I go and print this will get me
राइट, परफेक्ट। अब एक बार जब मैंने ये कर लिया, आई वुड लाइक कि जब भी मैं इस डेटा फ्रेम में, फॉर एग्जाम्पल रिकमेंडेशन के लिए क्या होगा, आप एक मूवी टाइटल दोगे और फिर उस मूवी टाइटल के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सारी मूवी अगर आपने देखी है तो ये सारी मूवी भी आपको देखनी चाहिए बिकॉज ये आपके टेस्ट के इक्वल है। तो उसके लिए मुझे हमेशा टाइटल से सर्च करना पड़ेगा एंड आई वुड लाइक दैट सर्च दैट लुकअप टू बी वेरी फास्ट। और वो कैसे करते हैं अपन, फॉर दैट वी कैन मेक द इंडेक्स। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग की यूजेस करेंगे ताकि मैं उस लुकअप को फास्ट कर पाऊँ। बट बिफोर वी गो एंड क्रिएट दैट इंडेक्स, एक चीज और बची रह गई विच विल हैव टू डू इट, राइट। तो सबसे पहले हम तो जॉनर निकालते हैं इसे, जॉनर लिस्ट, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू रिक्वायर्ड अंडरस्कोर nf डेटा फ्रेम। इसके अंदर से हमने निकाला जीनर्स को, जॉनर्स को हम लोग कहते हैं, मैं इसको जीनर बोल देता हूँ बार बार, टूल लिस्ट, ठीक है, ये हमने कर लिया है। उसके बाद क्या हम लोग करेंगे, हम लोग इसको एक TF-IDF मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द TF-IDF मैट्रिक्स? तो हमको नाउ एक TF-IDF मैट्रिक्स बनानी है विच स्टैंड्स फॉर द टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स, है ना। बेसिकली एक मैट्रिक्स बनाना है जहाँ पे हर रो विल रिप्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट एंड all the column will represent the different the terms which is associated with that particular document, and then that matrix in the specific cell will be some values which will show that how closely that is associated to a specific document itself. तो इसको बनाने के लिए what we do is we go and say that TF-IDF equals to text dot TF-IDF and I go and say that वेक्टोराइजर, और उसके अंदर में हमने डाल दिया कि भैया जब ये वेक्टर मैट्रिक्स बना रहे हो, TF-IDF मैट्रिक्स बना रहे हो, तो अंग्रेजी के जितने भी स्टॉप वर्ड्स हैं उनको आप इग्नोर कर देना बनाने के लिए, राइट। सो आई कैन से दैट ऑल द स्टॉप वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश हैज टू बी इग्नोर्ड, परफेक्ट। एंड फ्रॉम दिस आई कैन क्रिएट द TF-IDF अंडरस्कोर मैट्रिक्स एंड दिस विल बी इक्वल्स टू TF-IDF डॉट फिट transform and I go inside the journal list. Awesome. और उसके बाद हमने ले लिया सिमिलैरिटी इक्वल्स टू कोसाइन सिमिलैरिटी। आपको याद है कोसाइन सिमिलैरिटी हमने कुछ देर पहले इंपोर्ट करा था, उसका यूसेज क्या है? तो बेसिकली अगर मेरे पास ये TF-IDF मैट्रिक्स में तो दो रोज हैं, उनके बीच में हम कोसाइन एंगल निकालने की कोशिश करते हैं वेक्टर्स के बीच में, एंड इफ द एंगल कम्स आउट टू बी 0, राइट, इट मीन्स दैट वो काफ़ी सिमिलर है। अगर 90 है तो काफ़ी एक दूसरे से डिसिमिलर है, राइट। तो वो सारी चीज़ें अपन करते हैं। तो आई कैन ट्राई टू फाइंड द सिमिलरिटी यूजिंग द TF-IDF अंडरस्कोर मैट्रिक्स। तो हमने ये सिमिलरिटी निकाली। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी इफ देयर इज एनी इशू हियर। इफ आई कैन रन दिस, ये हमारा हो चुका है। अब चूंकि ये सिमिलरिटी निकल चुकी है तो आई हैव टू गो एंड इंडेक्स द टाइटल्स, राइट, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन इट। वी डिस्कस दैट इट इज नीडेड बिकॉज ऑफ द क्विक लुकअप। हाउ डू आई डू इट? सो आई कैन से दैट इंडिसेस equals to pd dot series, और उसके अंदर में हम लोग डाल देंगे required nfdf एंड इंडेक्स को हमने ले लिया है। इंडेक्स किस पे होना चाहिए? वो होना चाहिए required nfdf, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टाइटल, टी कैपिटल रखना है, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे डाल दिया है ड्रॉप डुप्लीकेट्स। Fair enough, I will go and run this. Indices got created. अब फाइनल वो घड़ी जहां पे मैं अपना एक्चुअली रिकमेंडेशन का अल्गो लिखूंगा, कोड लिखूंगा। तो लेट मी फर्स्ट राइट दिस कोड एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन कि हमने लिखा क्या है। तो नाउ सिंस ऑल ऑफ दिस इज डन, देन द फाइनल हार्ड वर्क इज दैट डेफ एंड आई विल से दैट नेटफ्लिक्स अंडरस्कोर रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन के लिए वो मिलेगा एक टाइटल और सिमिलरिटी वाली जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी, कौन सी सिमिलरिटी हमें यूज करनी, तो कोसाइन सिमिलरिटी मैं यूज कर रहा हूँ। तो वो मेरे पास सिमिलरिटी, डिफॉल्ट वैल्यू मैं सिमिलरिटी ही डाल देता हूँ अगर मैं कोई दूसरा ऐड नहीं करूँगा तो। फेयर इनफ। इसके अंदर में हमने इंडिसेस, इंडेक्स को निकाला, इंडेक्स को निकालने के लिए इंडिसेस, और इसके अंदर हमने टाइटल डाला था। वेरी नाइस। उसके बाद यानी कि जिस भी मूवी का आप डालूंगा उसका मैं इंडेक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ पहली लाइन पे, ठीक है। उसके बाद मैं उसका सिमिलरिटी स्कोर निकालूंगा, सिमिलरिटी अंडरस्कोर स्कोर्स इक्वल्स टू लिस्ट
और फिर मैं इन्यूमरेट करूँगा और मैं करूँगा सिमिलैरिटी और इसमें मैं करूँगा इंडेक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो सिमिलैरिटी वाला मैंने प्रिपेयर करा था विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स TF-IDF मैट्रिक्स, उस सिमिलैरिटी इंडेक्स को मैंने एन्यूमरेट करा है और उसको सिमिलैरिटी स्कोर्स मैंने उसे क्रिएट करे। वेरी नाइस, वंस आई हैव डन दिस, उसके बाद मैं फिर से सिमिलैरिटी स्कोर्स इक्वल्स टू सिमिलैरिटी स्कोर्स, और मैं सारे रिकमेंडेशन नहीं दिखाना चाहता, मैं टॉप 10 रिकमेंडेशन दिखाना चाहता हूँ, तो मैं सिमिलैरिटी स्कोर को स्लाइश कर दूंगा, टॉप 10 रिकॉर्ड्स दिखाऊंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद मूवी इंडिसेस इक्वल्स टू, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ I0 फॉर IN सिमिलैरिटी स्कोर्स, and then I can return required NFDF, और यहाँ पे मैं टाइटल, और यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ iLog, I want to remove this movie indices, वो सारे indices which I want to take it out। तो ये मेथड हमने डिफाइन कर दिया। लेट मी गो एंड रन दिस एंड सी इफ दिस मेथड इज वर्किंग फाइन, नो एरर्स। नाउ इट्स द फाइनल टाइम वेयर वी गोना चेक इफ मेरा जो ये मेथड है नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन मुझे रिकमेंड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे with my heart pumping I'm gonna finally test my code if it is working correctly or not। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ print एंड मैं यहाँ बोलता हूँ नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी फितूर, टेल मी इन द कमेंट्स इफ यू लाइक द मूवी। मुझे उतनी पसंद नहीं थी, पर लेट मी सी कि अगर मैं फितूर देखता हूँ तो कौन कौन सी मूवी मुझे नेटफ्लिक्स सजेस्ट करेगा। सो इफ आई गो एंड रन दिस, देयर इज एन एरर। व्हाट इज दैट? I is not defined. It should be I. If I go and run this, this is perfectly fine. If I go and run this now, awesome. So अगर मैंने फितूर देखा है तो नेटफ्लिक्स मुझे दिखाने वाला है ब्लैक एफ, फ्रेंड्स बट मैरी, रियलिटी हाई, सेल्फी, अनवेल, अलाइव, ये सारी मूवीज मुझे नेटफ्लिक्स दिखाने वाला है। So with this I have got the list of the movies which the Netflix could suggest. So this is how a recommendation system works. आपने देखा कि कैसे रिकमेंडेशन सिस्टम में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काफ़ी डीप यूज़ हो रहा है। हमने यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कुछ लाइब्रेरीज को यूज़ करा टू गेट दिस रिजल्ट। आई होप यू लाइक दिस प्रोजेक्ट। और हमने अभी तक पिछले 4 दिनों में कई सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग अप द लास्ट प्रोजेक्ट विच वुड बी रियली अमेजिंग। अगर आप ये कोड कर रहे हो मेरे साथ तो प्लीज इसको सोशल मीडिया पे शेयर करो, टैग मी इन, सो दैट आई नो दैट यू गाइस आर एक्चुअली गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग द नेक्स्ट एंड द फाइनल प्रोजेक्ट इन दिस 5-day 5 project challenge in Python. I hope to see you equally excited in the next project. Thank you.